थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल, जो कि आता ही है. सेकंड, हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. एप्लीकेशंस बहुत सारे एप्लीकेशन है. एक स्कूबा डाइवर का एप्लीकेशन है, नीचे कैसे वो जाता है. इसके बाद एनॉक्सिया एक हाई एल्टीट्यूड का है. हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस है. तो एक्सप्लेन मैम हेनरीज लॉ. यस, मे बी कि आज ही डाल देती हूँ. एंड थर्ड वन जो आता है, राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ और हेनरीज लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ. तो वो जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. एक्सप्लेन और जस्टिफाई योर आंसर. तो तब इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं बेटा. नाउ ए हेनरीज लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to the pressure of a gas over the solution. Over the solution, जो भी pressure exert कर रहा है, if you exert high pressure, then solubility of the gas increases. This was given by Henry. And a partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas, and it was given by Daltons. दोनों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके दोनों ने अपने अलग अलग लॉ दिए थे. पर आफ्टर क्लबिंग बोथ द लॉज, इसको क्लब करने के बाद ये लिया है कि P is equals to KH x. X is mole fraction, KH is Henry's constant. And X कहाँ से आया? डाल्टन्स लॉ से. KH in the honor of Henry, so it is P is equals to KHX, where KH is the Henry's law constant. And important to note that it depends on the nature of gas. Nature of gas पे depend करेगा. Okay, what is KH? KH is equals to P upon X. If value of KH is high, then solubility of the gas is क्या होगा? High or low? Low. Because अपन इसको रिलेशन को रिलेशन देख लो बेटा. KH is equals to P by X. At constant pressure, KH is inversely proportional to X. So if the higher is the value of KH, solubility of the gas is lower. So it's the first one. Just justify your question or reasoning question maybe here, where now greater the KH value, the lower will be the solubility and vice versa. मैंने explain कर दिया ये कैसे आएगा. KH increases with increase in temperature. Yes, again, Aditya, it's for you especially. कल आपने पूछा था शायद. KH increases with increase in temperature. So with increase in temperature, solubility of a gas in a liquid decreases. हाँ, शायद रौनक ने पूछा था, किसी एक ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था. With increase, तो ये relation आ गया. With increase in temperature, KH increases, or KH is directly proportional to temperature. So with in the summer, as temperature increases, KH also increases, and solubility of gas or solubility of oxygen decreases in water. And aquatic animals are less comfortable in summer than winter. So now next is applications of Henry's law. First one is a simple experiment. Soft drinks and soda water bottles are sealed under high pressure to increase the solubility of CO2. So what happened? If we open the soda water bottle or cold drink bottle, then CO2 is fizzes out till external pressure is equal to internal pressure. ये 11th में हमने पढ़ा था equilibrium में. If we open the seal of aerated drinks or soda water, then CO2 is fizzes out क्योंकि अंदर का pressure बहुत ज़्यादा है till it's equal to external pressure. Now second and third points are very important point for reasoning question as well as application. In scuba divers, what is the meaning of scuba divers? जो कि नीचे जा रहे हैं sea के अंदर. When divers are under deep water, pressure high pressure due to water, and atmospheric gases get dissolved in water. ये बिल्कुल arrow to arrow लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको clear हो जाए. बुक में आपको बहुत ऐसे पैराग्राफ में दिया हुआ है. So it's more clear for you कि as scuba divers go deeper to the sea, pressure, aqueous pressure, or we can say water pressure is high, and atmospheric gases which are dissolved in water get dissolved in blood. More and more blood में dissolve हो जाएगा. Now again when divers comes towards the surface, what happened? Pressure decreases, dissolved gases are released.
फॉर्मेशन ऑफ N2 bubbles in water. This is the important point. मेरा कर्सर अगर देख रहे हो तो फॉर्मेशन ऑफ N2 bubbles in blood. क्यों 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 बबल्स बन रहे हैं? बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज हैवियर. कई बार रात को हम सोते हैं तो क्या होता है, आप देखते हो कि पैर में ऐसे खिंच जाती हैं नसें, वेन्स जो है वो, ड्यू टू दिस एयर फॉर्मेशन. एयर बबल्स बन जाएंगे as nitrogen is heavier, so there is a gap between two gases, and this is very painful. Blockage of capillaries, painful conditions and known as bends is caused. This is the application. ये बिल्कुल arrow to arrow given है. अगर application आता है तो it's for you कि आप comfortably within 1 minute इसको लिख पाओगे. Now to avoid bends, scuba diver use oxygen diluted with less soluble helium gas for breathing. मतलब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, हीलियम आल्सो इनर्ट गैस, बट हीलियम इज लाइटर देन नाइट्रोजन. सो some amount of helium is added to this to avoid this air bubbles. Okay, clear? समझ में आ गया? नमन, आदित्य, is it clear? Yes. Aditya, is it clear? Aditya? Ma'am, I have a question. Yes. बोलो ना तो. मैम समर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, राइट? यस. बट मैम जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सीज में तो प्रेशर बढ़ेगा तो उससे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी. हाँ. तो मैम ये दोनों केस एक साथ पॉसिबल है? सी के नीचे बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होगा बेटा. सी के नीचे तो क्योंकि वाटर का प्रेशर लग रहा है ना, तो ये हेनरीज लॉ को एप्लीकेबल है. दोनों केसेस में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है. अगर हम केएच के कंडीशंस देख रहे हैं कि केएच किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कंडीशन एंड नेचर ऑफ द गैस. इजीली लिक्विफेबल अगर गैसेस होंगी तो दे शोज लो केएच वैल्यू. ये रीजनिंग क्वेश्चन है अगेन. अगर लो केएच वैल्यू होगी तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस हाई, एंड लो केएच वैल्यू कब होगी? जब gases are easily liquefiable. So KH value depends on temperature and nature of gas. Okay, both are the different conditions. Okay, now next same way at high altitude, Kunal, now I am audible for you. Kunal, and low oxygen pressure at high altitude. We know that at high altitudes, that at hills there is a pressure decreases. पता है, आप 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि pressure we use the bend on the pressure cooker. हमें pressure cooker पे increase करते हैं. अब as pressure is low, so low solubility of oxygen in blood. अब blood में अगर low solubility हो जाएगी, then symptoms of anoxia develops. What is the meaning of anoxia? Anoxia means in breathing problem, weakness, decreased thinking ability, etc. So अगर आप कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ या मानसरोवर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको लेना पड़ेगा और प्रॉपर आप लोगों का ब्रीदिंग जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम परफेक्ट होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, थर्ड लॉ मैं नहीं कर रही हूँ. नाउ वी विल डिस्कस, either we will now it's up to you. Either we will discuss Raoult's law, ideal and non-ideal solution, or numericals. क्या करें? I will discuss every question, सारे question in text example, because numericals in this chapter is a little bit hard. इसके numericals थोड़े से बेटा hard in the sense कि आपको formulae बहुत सारे हैं, उनको put करना पड़ेगा. Otherwise इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं सारे 1-1-1-1 सारे numericals discuss करूंगी. If it is possible for you, note it down, or otherwise I will give you. Now first example, calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing, first example है बेटा ये, 20% of C2H6O2 by mass. C2H6O2 is ethylene glycol and percent given है, it means 100%. So assume 100 gram of solution contain 20 gram of इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर. ये मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल है बेटा. मुझे नहीं पता कि 11th का क्लियर है या नहीं, इसीलिए मैं सारे न्यूमेरिकल्स दोबारा डिस्कस कर रही हूँ. नो रिस्क. नाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो हियर इज 0.3222 आ जाएगा. अगेन इन द सेम वे मोल्स ऑफ वाटर आ गया. यहाँ तक क्लियर है? प्लीज अपनी गर्दन हिलाते जाओ, नमन, आदित्य, जो भी मुझे नजर आ रहे हैं. मोल फ्रैक्शन
अच्छा, यहाँ पे एक चीज नहीं है, ये थोड़े शॉर्ट में है. You will write the formula also because half marks is for formula. So x is equals to यहाँ पे moles के लिए लिखोगे given mass upon molar mass. साइड में लिखते चले जाओ अपनी नोटबुक में. Given mass n is equals to given mass upon molar mass, and for x what happens, Naman? Yes. Now and x is equals to number na upon na plus nb. हमने कैलकुलेट कर लिया. कैलकुलेशन आई थिंक ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. नीचे वाले को ऐड करोगे, डिवाइड कर दोगे, एंड वी नो दैट XA plus XB is equals to 1, so माइनस कर दोगे, आपके पास दोनों का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. आई थिंक इट इज क्लियर. Now second question is calculate the molarity of solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. सिंपल अगेन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. फाइंड आउट द मोल्स. और मैंने कल कहा था आप लोगों को कि अब जब भी आप प्रैक्टिकल्स करोगे, जब आप टाइट्रेशंस लिखोगे, तो उसमें आप ये फॉर्मूला लिखना. अप टू लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला नहीं लिखते थे. नाउ दिस ईयर बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन आप लोगों को नहीं कैलकुलेट कर पाते हो. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो इट इज इक्वल टू 0.125 मोल. वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए एंड दिस इज सिंपली वैल्यू पुट करोगे. What is the formula of molarity? Molarity is equals to number of moles upon volume of solution into 1000 in case of ml. Okay, फॉर्मूला लिखना, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा. और अगर मान लो आपको लगता है, इट्स फॉर एवरी स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो रही है, तो यहाँ पे आप रिजल्ट इतना वैल्यू पुट करना. हाफ मार्क्स फॉर फॉर्मूला, आपको हाफ मार्क्स मिला. नाउ हाफ मार्क्स फॉर पुटिंग वैल्यूज, आपको वैल्यूज के 1 मार्क हो गया आउट ऑफ 3. नाउ कैलकुलेशन जितना शॉर्टकट कर लो, कटिंग कर लो, उनको पॉइंट्स हटा दो. नाउ 1 मार्क्स फॉर रिजल्ट एंड मोलैरिटी. नाउ अगर मान लो आपने रिजल्ट ही कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे गैप छोड़ दो, यूनिट लिख दो, कर्सर पे ध्यान देना. सो यू अगेन गॉट हाफ मार्क्स. तो कितने हुए आपके? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ. आउट ऑफ 3 2 मार्क्स आपको इजीली आ जाते हैं. एंड अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो इतना सा, इट्स इजियर फॉर मैथ्स स्टूडेंट. बायो वालों के लिए फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप प्रैक्टिस, पर वो भी मुश्किल नहीं है, मेरे पास भी बायो थी. सो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे कैलकुलेशंस की, तो इजी हो जाता है. क्यों हम एक भी मार्क छोड़ें. नाउ नेक्स्ट इज calculate molality. Again write the formula of molality. What is the formula of molality? Molality is equals to number of moles upon mass of solvent in gram into 1000. डायरेक्ट वैल्यू पुट की हुए हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं. आई थिंक इट इज इजी टू एक्सप्लेन. मतलब सबको समझ में आ गया. स्टूडेंट्स, मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, पर आई थिंक एवरीवन. ये वाला एग्जाम्पल जो है ना बेटा, ये है आप लोगों के हेनरीज लॉ पे. प्लीज आदित्य क्लियरली इसको. एट 293 केल्विन, ये एग्जाम्पल 4 ही है ये आप लोगों का. हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस would dissolve in 1 liter of water? Assume the N2 exert a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2. सब चीजें दे रखी हैं. आपने फर्स्ट क्या कैलकुलेट किया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू KHX. ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन नहीं पता. आपको मोल फ्रैक्शन पता होगा तो ही आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाओगे. एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा दोबारा से सबके लिए. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं एंड x is equals to Na upon Na plus Nb और N2 upon N2 plus H2. तो आपको नंबर ऑफ मोल्स, आपसे एग्जाम में क्या पूछ रहा है? एग्जाम में नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है. सो फॉर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास वैल्यू किसकी होनी चाहिए? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होनी चाहिए. एंड मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे? बाय यूजिंग द हेनरीज लॉ फॉर्मूला. यू हैव P वैल्यू है आपके पास, KH वैल्यू है, 2 चीजें गिवन है, वैल्यू पुट की, आपके पास x आ गया. अप टू दिस क्लियर आदित्य? अप टू दिस क्लियर हो गया? ओके. नाउ
नाउ x नाइट्रोजन, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, NN2 अपॉन NN2 प्लस 55.5, 55.5 कहाँ से आया मैं ये समझा रही हूँ आप लोगों को. It is the NB is the number of moles of water. Note it down. NN2 plus NH2O. NN2 को नीचे वाले को हम omit कर रहे हैं because कम है. And NH2O is calculated by 18 upon 1000 upon 18. 1000 ग्राम है, 18 उसका मोलर मास है. गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 1000 for 1 mole और upon 18. So it is 55.5 आ जाएगा. एंड आप वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट आंसर निकाल लोगे. कोई मतलब नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये नेक्स्ट एग्जांपल अभी नहीं कर पाओगे बेटा ये. नाउ कम टू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन बुक में निकालो बेटा. एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सब लोग है, बुक्स निकालनी है, ठीक है, ओके. Calculate the mass percent of benzene C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 12 gram of benzene is dissolved in 120 gram of carbon tetrachloride. बहुत easy न्यूमेरिकल है. मुझे लगता है जो अपना 11 का फर्स्ट चैप्टर है उसमें शायद ये न्यूमेरिकल इस तरह का एक न्यूमेरिकल सॉल्व प्रॉब्लम दे रखी है. मास परसेंट कैलकुलेट करना है, मास बाय मास. मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 20 ग्राम. नाउ टोटल मास कितना जाएगा 22 प्लस 122. परसेंट कैलकुलेट करना इनटू 100. सो आप कैलकुलेट कर लोगे 15.28 है, माइनस कर दो 100 में से, देन इट इज 84.72. आई थिंक फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. इज इट क्लियर? नाउ सेकंड सेम क्वेश्चन है. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%. ये एग्जांपल जैसा ही है बेटा, सेम क्वेश्चन है. बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेट देयर 100 ग्राम ले रहे हैं, 30 ग्राम है. फर्स्ट आप क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. नाउ x बेंजीन इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb. आप एक को कैलकुलेट कर दोगे, देन 1 माइनस. नमन, इज इट क्लियर? नमन, आदित्य, ये थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन जो है इजी है पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया है. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन. फर्स्ट इज, ये आपका एनसीईआरटी इंडेक्स 3 है. 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O in 4.3 liter of solution. एंड सेकंड दे रखा है 30 ml of 0.5 m H2S4 diluted in 500, diluted to 500 ml. फर्स्ट वाला देखो सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना. ओके, इन एग्जामिनेशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आप लर्न कर लोगे, पर जैसे कोबाल्ट जिंक इन सबका मोलर मास गिवन होगा बेटा. सो मतलब ऐसा कोई टेंशन मत रखना कि मोलर मास हमें इतना सारा लर्न करना पड़ेगा. मोलर मास हर जनरली गिवन होता है. सो आपने क्या किया, आपने उसको टोटल कर लिया एंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए. नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करें? 30 ग्राम गिवन है, 30 ग्राम अपॉन 291 एंड देन m कैलकुलेट करना है. मोलैरिटी 4.3 लीटर दे रखा है, ml में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो. बट फॉर्मूला लिखना बेटा, यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हुए नहीं है, बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, अदरवाइज मार्क्स एक हाफ मार्क्स चला जाएगा और हाफ मार्क्स वैल्यू पुट कर देंगे. नाउ सेकंड केस. Now second is 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml. So इसमें आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. ये आपका प्रैक्टिकल वाला फॉर्मूला लग रहा है. M1V1 is equals to M2V2. M1 कितना गिवन है? V1 कितना गिवन है? 30 ml एंड M1 कितना गिवन है? 0.5 m. M2 आपको फाइंड आउट करना है. V2 आपको 500 ml गिवन है. वैल्यू रखो और आपके पास आंसर आ जाएगा. I think 9-10 की मैथमेटिक्स है यहाँ तक तो. Now this, calculate the mass of urea. Formula of urea is NH2CONH2 required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. That is molality.
केजी में कैलकुलेट करना होगा ये। यस। अब इसमें देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। कुणाल समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? सॉल्वेंट इन केजी, ओके ओके। नाउ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, यहाँ पे कितना गिवन है 0.25 मोलर सॉल्यूशन, मतलब इतना m है, स्मॉल m, और कितने में दे रखा है 2.5 kg। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखो बेटा आप लोग, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, नहीं हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। और मोलैलिटी, यहाँ पे मोलैलिटी दे रखी है आपके पास 0.25 दे रखा है आपके पास, केजी में आपके पास सॉल्वेंट का मास दे रखा है, तो आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए सीधे सीधे। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट दिस इन योर नोटबुक और बुक जहां पे भी लिख रहे हो। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपको 0.625। नाउ इतना आ गया आपके पास, मोल्स आ गया। आपको मास ऑफ यूरिया निकालना है। मास ऑफ यूरिया का फॉर्मूला दोबारा से लिखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपके पास मोल्स है, बाकी सब गिवन मास नहीं है, मोलर मास है यूरिया का 37.5 ग्राम। मैं यहाँ तक के न्यूमेरिकल, इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या करूं, आज ही शेयर कर दूं आप लोगों को ग्रुप में। कैलकुलेट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। अगेन इसको ध्यान से समझना बेटा। If the density of 20% mass by mass aqueous KI is 1.202 gram ml minus 1. So 20% means 20 gram of KI present in 80 gram of water. 20% का यही मतलब होगा, ये तो सबको पता है। Therefore moles calculate करने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, given mass upon molar mass 0.12 moles of water। मोल्स ऑफ वाटर आपको पता ही है आप कैसे कैलकुलेट करते हो, माइनस कर आप कैलकुलेट कर लो मोल्स ऑफ वाटर, सेम गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाउ फर्स्ट ए इज मोलैलिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ml इन ग्राम इन 2000। वैल्यू पुट करो, सीधे सीधे आप कैलकुलेट करो, सीधी सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड, और आपके पास आंसर आ गया। नाउ सेकेंड आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा 11th का मुझे याद है, सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल था एक ऐसा 11th में फर्स्ट चैप्टर में। ओके कोई बात नहीं, 11th अपन भूल जाते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन एज परसेंट में गिवन है, तो टोटल मास इज इक्वल टू 100। डेंसिटी इज गिवन है, so its volume of solution आ जाएगा। Up to this clear, Kunal? Kunal, is it clear? What is the m? M is molarity. Molarity value put कर दो, 0.12 moles आए थे, then 100 upon 1.202 into 1000 and it is 1.44. So अगर आपको density है और mass given है, volume नहीं है, molarity clear, molarity find out करनी है, तो आप इन दिस वे इसको कैलकुलेट करोगे। ओके नाउ इट इज x, x जो है आपका क्या है, x मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, एवरीथिंग गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। नाउ सिक्स्थ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सिक्स्थ एंड सेवेंथ जो है ये दोनों हेनरीज लॉ पे बेस्ड है, और आज के लिए बस इतना ही हो पाएगा बेटा। कल अपन आगे का डिस्कस। गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल इज यू, और ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत बार, अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चंस देखोगे ना, तो बहुत बार आया हुआ है ये वाला सेम क्वेश्चन। हाँ, वैल्यूज भी चेंज नहीं है। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the quantitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP दे रखा है, is 0.195 m, that is molality given है, calculate Henry's law constant, that is KH कैलकुलेट करना है। तो KH के लिए अपने को फॉर्मूला पता है, P is equals to KHX, आपको P दे रखा है। STP पे P कितना हो जाएगा, 1 बार। STP पे P कितना होगा, 1 बार, तो आपको P पता है।
आपको KH कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली पहले आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको गिवन है, सब चीजें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0.0035। वैल्यूज पुट की हैं बेटा, सिर्फ 1000/18 यहाँ शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मैंने अभी बताया था, एंड इट इज इक्वल टू 55.5। हर बार 1000/18 मत कैलकुलेट करना, 1000/18 अगर मान लीजिए 1 मोल गिवन है, इन 1 लीटर में डिसॉल्व किया है या 1 kg में, सो इट्स 55.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे उसमें 500 में डिसॉल्व किया है तो वो उसका हाफ हो जाएगा। नाउ x आ गया, वैल्यू पुट करो। बस STP के लिए आपको याद रखना पड़ेगा इट इज 1 बार, क्योंकि बार में जनरली कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों उसको आप जनरली ATM में करते हो? फालतू में कैलकुलेशंस बढ़ाने के लिए। Now last question. Henry's law constant for CO2 in water. नहीं, second last question है, एक और भी सेम क्वेश्चन है शायद। Henry's law constant for CO2 in water is 1.67. यहाँ पे Henry's law constant given at 298 Kelvin. Calculate the quantity. Yes. मैम ये नेग्लेक्टिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन डिनोमिनेटर, तो ये ऐसे क्यों करते हैं? फॉर ये इसलिए कर देते हैं बेटा, टू इजी द कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में बहुत कम होंगे विथ रेस्पेक्ट टू, अगर जितना ज्यादा वाटर का मोल है उसमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट डिसॉल्व किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? बहुत कम होंगे ना। दैट्स व्हाई उसको मैं सिर्फ कैलकुलेशन टू सॉल्व इजी कैलकुलेशन के लिए उसको अपन ओमिट कर देंगे। ओके नमन? ठीक है, यस यस, ओके। CO2 in 500 ml of soda water when packed under 25 atm CO2 pressure at 29। आपको 2.25 atm आपको दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है। नाउ वैल्यू पुट करो, 2.5 into 1.03 वैल्यूज पुट की है पास्कल में, क्योंकि ऊपर किस में दे रखा है? पास्कल में, और नीचे किस में दे रखा है? ATM में। ध्यान रखना ये इतना सा आपको वो यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। इधर आप पास्कल को ATM में कन्वर्ट करो और ATM को पास्कल में कन्वर्ट करो। 1 into 10⁵ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है बेटा, 1.013 into 10⁵, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। 0.013 का बहुत कम फर्क पड़ता है, तो यू कैन मल्टीप्लाई 2.5 डायरेक्टली 2.5 into 10⁵। ठीक है, हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 into 10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की कोई वैल्यू नहीं, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा आंसर। सो 2.5 into 10⁵ is equals to 1.67 into 10⁸ given है। NCO2 upon 500/18। ये मैंने अभी बताया था। 500 क्यों आया यहाँ पे? Because it is dissolved in 500 ml। अगर अब तक अपन ने 55.5 लिया था क्योंकि वो 1 लीटर में था। नेग्लेक्टिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। नमन क्लियर हो गया कि हमने क्यों उसको नेग्लेक्ट किया है? मतलब आगे का टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। राउल्स लॉ, आइडियल एंड, हाँ मैम वो जो अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन करा उसमें पास्कल से ATM में करा है ना चेंज? हाँ, ATM को पास्कल में किया है बेटा। अच्छा, और मैम एक और चीज। हाँ बोलो। वो अभी आपने बोला था ना कि उन दो चीजों का सम 1 हो जाता है, एक बार फिर से बताना। एक मिनट बेटा। दो चीजों का वो सम मिला के 1 हो जाता ना, एक बार बता दो। अच्छा ओके, XA plus XB is equals to 1 होता है। लिखो XA plus कैसे आता है अब तुम देखो। XA की जगह पे लिखो Na/Na plus NB। ठीक है, प्लस NB/Na plus NB। ओके, अब LCM ले लो, Na plus NB LCM ले लोगे आप। आदित्य LCM ले आ गया, क्रॉस हो जाएंगे। हाँ, तो XA plus XB plus XC is equals to 1। मतलब मुझे बहुत ऐसा स्माइलिंग फेस मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपन तो क्या स्कूबा डाइवर्स जो नीचे जा रहे हैं सी में,
नीचे जा रहे हैं तो उनके ऊपर तो उनके पास सिलेंडर तो होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि बहुत नीचे तक तो पानी में ऑक्सीजन होगी नहीं। नाउ क्या होता है कि जब वो नीचे जा रहे हैं, प्रेशर क्या होगा, पानी का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा उनमें, और अकॉर्डिंग, पूर्वांशी समझ में आ रहा है ना बेटा? यस मैम। हाँ, तो जैसे ही वो नीचे जा रहे हैं तो उन पे प्रेशर इंक्रीज होगा वाटर का, और ब्लड के अंदर जो गैसेस हैं, उस सिलेंडर में जो गैसेस हैं वो क्या होंगी, वो और ज्यादा डिसॉल्व होती जाएंगी उनकी ब्लड में। ठीक है, डिसॉल्व हो गया, क्योंकि P इज इक्वल टू KHX, प्रेशर ज्यादा हो रहा है पानी के नीचे, ऑब्वियसली सॉलिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, स्कूबा डाइवर्स वापस ऊपर आ रहे हैं। अब ऊपर आ रहे हैं तो इनिशियली क्या होता था, ऑक्सीजन बिकॉज हाईली कंबस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा बॉडी में, तो उसको थोड़ा सा इनर्ट करने के लिए उसमें नाइट्रोजन इनर्ट गैस ऐड करते थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो ऊपर आ रहे हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, solubility of gas decreases, solubility of gas decreases, then नाइट्रोजन हैवियर होगा। अब तुम यही सोच लो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि चलो पूर्वांशी आज रेस करते हैं स्कूल में, फिजिकल के पीरियड में मैं भी जाती हूँ, तो ऑब्वियसली तुम जल्दी दौड़ोगी मुझसे, तो है ना? जो थोड़ा सा हैवी होंगे वो थोड़ा लेट, मतलब धीरे दौड़ेंगे, और जो थिन है वो फास्ट। तो अब क्या होगा, जो लाइटर गैसेस हैं वो आगे निकल जाएंगी और नाइट्रोजन बीच में गैप रह जाता है, दैट इज एयर बबल्स हो जाएगा। अभी 12th में पहुंचो, जिस दिन भी मैं लैब में जाऊंगी ना, मैं हमेशा, मेरा फर्स्ट सेंटेंस होता था कि एयर बबल निकालो, मतलब ऊपर से फनल हटाओ और एयर बबल निकालो। और इसके लिए माधव मित्तल को बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला था जब वो केमिस्ट्री ओलंपिक्स ने मुझे दोबारा कर उसने ये बात शेयर की थी कि मैम आप मुझे वहां पे हमेशा याद आते थे कि वहां पे हमेशा सब लोग ऐसे ही एयर बबल रख देते थे और टीचर्स ये बोलते थे कि रिमूव एयर बबल्स, रिमूव एयर बबल्स। सो वो एयर बबल क्या होगा, वो ब्लड को बहुत ज्यादा मतलब कैपिलरीज क्योंकि बहुत छोटी है वहां पे ब्लॉक हो जाएगा, और क्या होगा, इट इज वेरी पेनफुल। रात को कई बार अपन सोते हैं, पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ रह जाता है, तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एयर, पैर में दर्द होने लग जाता है, एंड दिस इज नोन एज बेंड। तो ये था। पूर्वांशी समझ में आया बेटा? पूर्वांशी एक बार स्विच ऑन करो बेटा वीडियो। फॉर्मेशन ऑफ N2 बबल इन द वॉट ब्लड, वो ब्लड के अंदर क्या करेंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं, लाइटर गैसेस ऊपर चले गई, बीच में थोड़ा गैप बन गया, ब्लॉकेज हो जाएगा कैपिलरीज में, और इसको हम बेंड कहते हैं। टू अवॉइड दिस, अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ उसमें हीलियम ऐड करते हैं। यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन गिवन नहीं है बेटा, परसेंट गिवन नहीं है। आप लोगों की जो बुक है एनसीईआरटी बुक जो है, उस एनसीईआरटी बुक में, ओल्ड बुक में तो मैं बता देती हूँ कौन से पेज नंबर पे है, न्यू बुक में मुझे आइडिया नहीं है। ओल्ड बुक में पेज नंबर 41 पे दे रखा है, परसेंटेज गिवन है कि कितनी कितनी परसेंटेज चाहिए। हीलियम इज 11.7%, नाइट्रोजन इज 56.2% एंड 32.1% इज ऑक्सीजन। सो ये लर्न कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे और पूछ सकते हैं ये। ओके, आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो गया। एक फॉर्मूला से तो मतलब दूसरे फॉर्मूला के लिए वैल्यू निकालनी है बस, अप टू हेनरीज लॉ। यस मैम। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं बेटा जिसमें कि डायरेक्ट उन्होंने P और KH दे रखा है, X पूछ रहे हैं सिर्फ, या X और P दे रखा है, KH पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट कर लोगे। तुम्हें देखना पड़ेगा एक बार, जस्ट